Hello friends, welcome to my YouTube channel CareTax. So today I am bringing to you an important topic under the GST rules. That is the valuation framework that has been provided for the value of goods and service on which GST is paid. So this topic is very relevant and important for the students appearing in the professional courses like CA, CS and CMA, as well as for the academic students who are where their GST law is applicable in their syllabus. Further, this topic is also much relevant for the business houses, entrepreneurs and individual business houses, as this will provide you the basis on which the value on which the GST is payable. मतलब any sort payment of GST may invite query from the department, as well as invite the chances of litigation. So in order to avoid, it is very important to understand the value on which tax should be paid. So let us start and understand it. In case of any query, definitely get in touch with me. I like to resolve your queries and make your further clarify the provisions. So let's start. Before starting, so I'll request all of you to like and subscribe my channel and press the bell button so that you can get the update whenever there is any new video posted. So let's start, friends. So today we are discussing on the evaluation of taxable goods and services under the GST law. So let us understand why this valuation is applicable. This valuation is relevant. So this valuation tells us the value or the price on which tax should be paid. मतलब अगर आपको प्राइस ही नहीं पता है किसके ऊपर टैक्स देना है, तो आप टैक्स कैसे देंगे? सो दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर दी CGST एक्ट सेक्शन 8, वेयर इट सेज कि आपको एक बेस प्राइस चाहिए जहाँ पे आपको GST लगाना है. ठीक है. सो ये बेस प्राइस कैसे डिराइव होगा? सो दिस सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट provides for the derivation of the valuation of taxable goods. So let us see what is there in the section 15. How does it read? So valuation under section 15 of the CGST Act for levy of GST is the transaction value, that is the price paid or payable for the said supply of goods or service or both. मतलब सेक्शन 15 कह रहा है कि the transaction value agreed between the buyer and seller for the purchase and sale of goods or services will be the value for on which the GST should be paid. And what is this transaction value? So transaction value क्या होता है? So transaction value is something which is the price paid or payable for the said supply of goods or services or both. मतलब when you go to a market and ask a price from the seller, so the price that he quotes and the price on which he agrees to purchase, that is the transaction value in the normal course of scenario. इन द नॉर्मल सिनेरियो वही प्राइस होगा जिस पे कि आपको GST पे करना है. सपोज आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, स्टील मार्केट गए, आपको एक बोतल खरीदना है और सेलर ने आपको 100 रुपया, आपने 100 रुपया पेमेंट किया, तो 100 रुपया पे क्या है, आपको GST लगेगा, राइट. बट सेक्शन 15 कह रहा है कि ये प्राइस तभी, एवेल्यूएशन रूल तभी अप्लाई करेगा जब सेलर और बायर जो है रिलेटेड नहीं है और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है. मतलब कोई और अलग से आपको कंसिडरेशन नहीं है. मतलब आइदर इन कैश और इन काइंड देयर शुड नॉट बी एनी कंसिडरेशन एंड द बायर एंड सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड. तो इससे ये क्यों कहा गया है? बिकॉज व्हेन द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड देयर आर चांसेस कि क्या होता है कि सेलर में सेल यू एट अ लेस प्राइस, सो उस केस में गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा. ओके. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिनेरियो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है तब आपको सेक्शन 15 में नहीं जाना है, या प्राइस अगर सोल कंसिडरेशन नहीं है तब आपको सेक्शन 15 में जाना पड़ेगा. अदरवाइज आपको वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे. मतलब द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन रूल्स, वैल्यूएशन मैकेनिज्म, अदर रूल्स अंडर द CGST रूल्स दैट विल बी यूज फॉर डिराइविंग द वैल्यू व्हेन द सप्लायर एंड बायर आर रिलेटेड और प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. सो ऐसे नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा? नॉर्मल सिनेरियो में ट्रांजेक्शन वैल्यू जो आप एग्री किए हैं बायर एंड सेलर के बीच में, दैट विल बी द बेसिस ऑन विच GST शुड बी पेड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द बायर. हाउएवर अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है या प्राइस कंसिडरेशन नहीं है, देयर आर सर्टेन कंसिडरेशन इन कैश और इन काइंड और एनी अदर कंसिडरेशन, देन दिस वैल्यूएशन मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 15 विल नॉट अप्लाई. सो देयर आर सर्टेन इंक्लूजन्स, there are certain items which has been provided under the section 15 जिसको कि आपको include करना है while deriving this transaction value, and there are certain items which has to be excluded while deriving this transaction value. So let us understand what these items are.
So this has to be kept in mind while correctly determining the transaction value. Okay, otherwise there could be a short levy, higher levy of taxes. Let us understand the first item. The first item is any taxes, duties, cess and charges levied under any other statute. Taxes levied under GST Act is not includable. So very important to understand कि मतलब अगर आपने टैक्स, ड्यूटीज़ और सेस चार्जेस कोई अदर एक्ट में कलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई आइटम है जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है, या जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है, सो उस आइटम को एंड सो दैट टैक्स एंड सेस शुड बी, और देयर सर्टेन आइटम्स ऑन विच म्युनिसिपल टैक्स इज कलेक्टेड इन सम फॉर्म, सो वो सब टैक्सेस या ड्यूटीज़ या सेस जो है or any other charges that has been provided under any other statute has to be included for deriving the GST वैल्यू. मतलब इसमें क्या हो गया कि अगर आप कोई टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट करते हैं जो कि GST एक्ट में लेवी नहीं होता है, लेविड अंडर एनी अदर एक्ट, सो वो सब टैक्सेस, लेवी एंड सेस जो है आपको इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ डेराइविंग द ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर चार्जिंग द GST. हाउएवर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि अगर आपने कोई टैक्सेस GST एक्ट में जो चार्ज किया, जैसे जो कि GST, SGST और IGST है या कंपेंसेशन सेस है, सो दैट टैक्सेस विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर लेविंग GST. मतलब जो GST एक्ट में टैक्सेस प्रोवाइड किया गए हैं उसको एक्सक्लूड करके अगर कोई चार्जेस और सेस जो कि अदर एक्ट में प्रोवाइड किया हुआ है, अगर उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं पार्टी से, मतलब बायर से, देन यू विल हैव टू इंक्लूड charges in the taxable value. So let us now see the second point. Any amount that supplier is liable to pay but has been incurred by the buyer and not already included in the price. इसमें क्या प्रोवाइड किया है कि मान लीजिए the supplier had to incur something some other cost for supplying the goods and services. The supplier has to include certain has to do certain act which has to be incurred by the on which cost has to be incurred by the supplier, बट वहाँ क्या किया, बायर ने खुद के पॉकेट से खर्चा कर दिया, सो उस कॉस्ट को भी जो है कि ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड करने का है. तो मतलब एनीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द सप्लायर बट हैज़ बीन डन बाय द बायर ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर एंड द कॉस्ट incurred to do such an act, okay, so that cost will get included in the valuation mechanism for the purpose of levy of GST. So very important point. So now let's move to the third item. Yeah, so the third item is like any sum charged for anything done in respect of supply at the time or before of or at the time of delivery of goods or services. मतलब कोई खर्चा है जो कि the supplier is incurring and is collecting from the buyer in the nature of incidental expenses, you can say, like the insurance charges, the commission charges, the packing charges or freight charges, जो कि अलग से सप्लायर कलेक्ट कर रहा है और इट मे और मे नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बट इज बीइंग कलेक्टेड बाय द सप्लायर फ्रॉम द बायर. ओके, देन such amount has to be included in the value of taxable goods and services to pay the GST amount. So very important, मतलब कोई भी अगर incidental expenses related to the supply of goods or services है, then it has to, so then that price has to be included for the valuation purpose. So moving to the next point, interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration for any supply of goods. So क्या होता है, suppose there are various clauses provided in the contract कि if there are delay in supply of goods or services, then there will be interest payment or the late fee payment or penalty that will be levied by the supplier on the buyer. अगर वैसा कुछ है, then the supplier will have to if collected from the buyer, then will have to pay GST on that part as well. मतलब अगर मान लीजिए आज आप सेल कर रहे हैं एंड देयर इज अ प्रोविज़न कि अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो आपको इतना पैसा और देना पड़ेगा, तो अगर सच में वो पैसा कुछ कलेक्ट करता है फ्रॉम द बायर, देन दैट प्राइस हैज़ टू बी इंक्लूडेड फॉर द वैल्यू ऑफ डिटरमाइनिंग GST. मतलब उस प्राइस को इंक्लूड करना पड़ेगा GST पेमेंट करने के लिए. मतलब कोई भी अगर आप पेनल्टी या लेट फी या इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं बायर से, दैट प्राइस हैज़ टू बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ लेवी. सो नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, subsidies directly linked to price excluding subsidies provided by central government and state government. मतलब
कोई सब्सिडी अगर सप्लायर को मिला है फ्रॉम दी फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर और थर्ड पार्टी विच इज़ नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट सब्सिडी इज़ डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, मतलब यहाँ दो कंडीशन है। वो सब्सिडी जो है आपको एक गवर्नमेंट से नहीं मिलना चाहिए, या तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा कि वो प्राइस से लिंक नहीं होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा कि वो सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगा। बट अगर आप कोई सब्सिडी थर्ड पार्टी से या थर्ड पार्टी एंटरप्रेन्योर से रिसीव कर अगर आप कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिला है तो दैट हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड। और कोई सब्सिडी आपको मिला है बट वो आपके गुड्स के प्राइस से लिंक्ड नहीं है, तब भी वो एक्सक्लूड होगा। बट अगर कोई आप थर्ड पार्टी से सब्सिडी रिसीव करते हैं फ्रॉम अ प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटरप्रेन्योर और फ्रॉम सम एनी अदर एजेंसी एंड इज लिंक टू द प्राइस ऑफ द गुड्स, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों होगा तभी जाके वो सब्सिडी जो है आपके वैल्यूएशन रूल्स में वैल्यूएशन में ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि मतलब ये 5 आइटम्स है जो एक्ट में प्रोवाइडेड है कि अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो आपको इंक्लूड करना है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द So let us see what are the items that is excluded under the transaction for transaction value. So the first item is the discount allowed before at the time of supply and recorded in the invoices. मतलब सपोज इफ़ यू आर परचेजिंग एनी आइटम जिसका दाम 100 रुपया है एंड देन डिस्काउंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब जब आप परचेज कर रहे हैं तभी आपको सप्लायर जो है डिस्काउंट दे दिया। सो वो डिस्काउंट जो है और रिकॉर्ड हुआ है इनवॉइस में एज अ लेस फ्रॉम दी योर सेल प्राइस, देन डिस्काउंट हैज़ टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दी योर सेल प्राइस फॉर और दी ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर डिटरमाइनिंग दी वैल्यूएशन। सेकेंड पॉइंट डिस्काउंट गिवन आफ्टर। So second point in the exclusion is discount given after supply and not recorded in invoice. तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कोई डिस्काउंट है जो कि इनवॉइस में लेस नहीं किया गया है एंड दैट हैज़ बीन अलाउड आफ्टर द सप्लाई, मतलब बट सप्लाई के बाद अलाउ किया गया, मतलब कुछ सप्लाई आपने कर लिया एंड इट हैज़ बीन अलाउड पोस्ट फैक्टो, सप्लाई ख़त्म हो गया है एंड यू हैव अचीव्ड सर्टेन माइलस्टोन एंड मतलब सो अगर कुछ डिस्काउंट आपको सप्लाई करने के बाद मिलता है फ्रॉम द सप्लायर एंड इट इज़ लिंक टू द इनवॉइसेस बाय द सप्लायर एंड दिस डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड एज पर द एग्रीमेंट, मतलब मान लीजिए देयर इज़ अ कंडीशन इन द एग्रीमेंट दैट यू सेल दिस मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स देन यू विल गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ओके। सो अगर वो अचीवमेंट हो जाता है फ्रॉम द बायर साइड, ही अचीव द माइलस्टोन और उसके बाद आपको कोई डिस्काउंट बायर को मिलता है and which is linked to the original supply invoices or service invoices, then in that case that discount can be considered or deducted from the taxable value, मतलब क्रेडिट मेमो देकर उसके ऊपर जीएसटी जो है रिड्यूस किया जा सकता है, राइट, फ्रॉम बाय द सप्लायर। मतलब लेकिन इसमें दो कंडीशन है, एक तो एग्रीमेंट के तौर पे वो डिस्काउंट मिलना चाहिए एंड इट शुड बी लिंक टू द ओरिजिनल सप्लाई इन्वॉइसेस, एंड सेकेंड इज इनपुट क्रेडिट जो कि ओरिजिनल इन्वॉइसेस पे लिया था बायर ने पूरा, उसको वो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट को रिड्यूस करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, मतलब यहाँ पे क्या है कि अब जस्ट टू समराइज़ कि मैंने अभी तक क्या बोला आपको, कि पहला चीज़ है कि वैल्यूएशन क्यों चाहिए। वैल्यूएशन इसलिए चाहिए क्योंकि यू नीड टू डिटरमाइन अ प्राइस ऑन विच टैक्स शुड बी पेएबल। सो वो कैसे डिटरमाइन होगा, सो दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय दी सेक्शन 15 ऑफ द CGST सेल्स की, मतलब कोई भी प्राइस आप एग्री करते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, दैट वुड बी द प्राइस ऑन विच टैक्स वुड बी पेएबल। हाउएवर अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है और प्राइस जो है सोल कंसिडरेशन नहीं है, मतलब इट इज नॉट द सोल ओनली क्राइटेरिया टू डिटरमाइन दी वैल्यूएशन, देन वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 15 विल नॉट बी एप्लीकेबल। तब आपको वैल्यूएशन रूल्स में जाना है। सो जो विच हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड हेयर, that will be discussed in another presentation that will be done in the next video. So अब उसके बाद क्या है, सेक्शन 15 में कुछ इंक्लूजन्स प्रोवाइड किया गया है लाइक एंड कुछ एक्सक्लूजन प्रोवाइड किया। सो इंक्लूजन में 5 चीज़ें प्रोवाइड किया गया है। पहला कि एनी टैक्सेस चार्जेस और सेस दैट हैज़ बीन कलेक्टेड अंडर एनी अदर स्टैट्यूट, मतलब अगर कोई टैक्स सेस और चार्जेस कलेक्ट किए हैं एनी अदर लॉ के अंडर में तो उस पर क्या है आपको उसको इंक्लूड करना है वैल्यूएशन पर्पस के लिए। बट टैक्सेस दैट हैज़ बीन लेविड अंडर द CGST एक्ट विल बी एक्सक्लूडेड। सेकेंड पॉइंट क्या था कि अगर बायर को कुछ करना बायर कुछ कर दिया सप्लायर के बिहाफ में, मतलब सप्लायर को करना था इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स बट बायर हैज़ डन इट फ्रॉम
his side, maybe for certain reasons or for emergency or exigency. So उस केस में जो कॉस्ट इंकर हुआ है बाय द बायर, so that would also be included for the levy of GST. थर्ड आइटम क्या है, मतलब एनी सम चार्ज फॉर एनीथिंग डन इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई एट द टाइम और बिफोर और डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज. मतलब कुछ सम जो पैसा जो है कलेक्ट कर रहा है सप्लायर इन द नेचर ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक कमीशन, इंश्योरेंस और पैकिंग चार्जेस ऑफ फ्रेट, so that has to be also included for the valuation of taxable supply. नेक्स्ट इज, मान लीजिए देयर इज अ क्लॉज इन दी एग्रीमेंट कि ये इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी विल बी पेड बाय द बायर इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट एंड इट हैज़ बीन एक्चुअली कलेक्टेड फ्रॉम द बायर, देन such value has to be included for the purpose of levy of GST. The last point is, and very important point is, subsidy directly linked to price and not received from the central and state government. मतलब कोई सब्सिडी आप रिसीव कर रहे हैं which is linked to price and is given by a third party entrepreneur or any other agency which is not central government or state government, वो भी सब्सिडी भी आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ GST. और एक्सक्लूजन्स क्या है, एक्सक्लूजन है कि अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है एट द टाइम ऑफ सेल जो कि इनवॉइस में रिकॉर्डेड हुआ है एज फ्रॉम योर सेल प्राइस डिडक्शन, देन इन दैट केस इट हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड. सेकेंड इज, अगर मान लीजिए कोई पोस्ट सेल डिस्काउंट आपको मिला है बेस्ड ऑन दी अचीवमेंट ऑफ सर्टन माइलस्टोन्स और फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन, तो वो भी आपको डिडक्शंस मिल जाए, एक्सक्लूजन्स हो जाएगा ट्रांजेक्शन वैल्यू से अगर वो आपके एग्रीमेंट के तहत मिल रहा है विच वाज एंटर्ड प्रायर टू द सेल और वो आपके इन्वॉइस के साथ भी लिंक हो चुका है, मतलब ओरिजिनल इन्वॉइसेस के साथ लिंक हो गया एंड द बायर हैज़ रिवर्स्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट वाज अवेल्ड ऑन द ओरिजिनल इन्वॉइस, मतलब प्रोपोर्शनल क्रेडिट रिड्यूस करना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस सी व्हाट इज फर्दर देयर इन द प्रेजेंटेशन. द नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड पार्टी डेफिनेशंस. सो एज आई अर्लियर मेंशन कि सेक्शन 15 का एप्लीकेबिलिटी भी होगा जब बायर एंड सेलर रिलेटेड ना हो. अगर बायर एंड रिलेटेड होता है तो सेक्शन 15 अप्लाई नहीं करेगा. यू विल हैव टू गो टू वैल्यूएशन रूल विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर CGST रूल 2017. ठीक है. सो व्हाट डज दिस रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन मीन्स, मतलब रिलेटेड पार्टी किसको बोला जाएगा अंडर CGST. सो दैट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द CGST एक्ट. So persons will be deemed to be related person if such persons are officers or directors of one other's business. Such persons are legally recognized partners in business. मतलब अगर कोई ऑफिसर से जो दो एक दूसरे के बिजनेस में रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के बिजनेस में पार्टनर्स है, तो क्या होगा कि दोज पर्सन विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी एंड दिस सेक्शन 15 विल नॉट अप्लाई. द अदर केसेस आर सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. Any person directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock share or both of them. One of them directly or indirectly controls the other. Both of them are directly or indirectly controlled by a third person. Together they directly or indirectly control of a third person and they are members of the same family. So यहाँ पे बहुत सारे situations provide किए हैं कि जब को आपको related मानना पड़ेगा. अगर मान लीजिए आप सेम फैमिली के हैं और दो बिजनेस चलाते हैं, मतलब दे दो भाई और दोनों अलग अलग बिजनेस चलाते हैं, सो दे विल बी ट्रीटेड रिलेटेड इन रिलेटेड टू सेम बिजनेस. मतलब अगर दोनों आपस में परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. सिमिलरली अगर देयर इज अ सर्टेन एंटिटी विच इज़ कंट्रोल्ड बाय यू, तो केस में क्या होगा, यू बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पार्टी. सिमिलरली इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मतलब इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयर एंड यूर एम्प्लॉई समथिंग एंड उन दोनों के बीच में सेल परचेज एग्रीमेंट हो रहा है, देन यू विल बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पार्टी एंड द ट्रांजेक्शन वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 15 विल नॉट अप्लाई. सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द कंडीशंस और the relations on which the related party transactions would get triggered and section 15 will not apply. The other things are like persons who are associated in the business of one another in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, howsoever described of the other shall be deemed to be related. मतलब अगर कोई सोल सेलिंग एजेंट है या सोल बाइंग एजेंट है, then in that case they should also be treated as a related party and in that case also section 15 will not apply. So related party के cases में section 15 apply नहीं होता है. Very important to note, we have to go to valuation rules which is provided from section in rule 27 of the CGST rules,
and there are various other rules which prescribe so अब क्या है, जैसे मैंने बताया कि आपको वैल्यूएशन रूल्स में जाना है. लेट अस सी व्हेन दिस वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई. मैंने पहले भी डिस्कस किया. लेट अस सी व्हाट इज द व्हेन दिस वैल्यूएशन रूल अप्लाई. सो वैल्यूएशन रूल्स में आपको तभी जाना है तब आपका कंसिडरेशन इज़ नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स. मतलब व्हेन यू आर परचेजिंग फ्रॉम अ सेलर एंड यू आर नॉट पेइंग फुल्ली इन मनी, आइदर होली और फुल्ली इन मनी, देन आपका वैल्यूएशन रूल्स विल अप्लाई. और दी पार्टीज आर रिलेटेड, मतलब जो बायर और सेलर है वो एक दूसरे के रिलेशन में आता है, जो कि सेक्शन 15 में भी बताया गया है कि अगर सेलर एंड बायर रिलेटेड होगा तो आपको सेक्शन 15 अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वैल्यूएशन रूल्स में ही जाना है. थर्ड इज टीवी डिक्लेयर इज़ नॉट रिलायबल. मतलब अगर आप कोई ट्रांजेक्शन वैल्यू डिटरमाइन किए हैं बायर एंड सेलर बट विच हैज़ बिन रिजेक्टेड बाय द वैल्यूएशन अथॉरिटी और दी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी की ये वैल्यूएशन ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है हैज़ बिन इन्फ्लुएंस्ड फॉर सम रीज़न और इज़ नॉट करेक्ट और इज़ नॉट रिलायबल इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन, उस केस में भी क्या है कि आपको वैल्यूएशन रूल्स में जाकर उसका वैल्यूएशन करना है गुड्स का या सर्विस का. राइट. तो 3 कंडीशन है जब आपको वैल्यूएशन रूल्स रेफर करने का है. पहला, आप बायर और सेलर रिलेटेड हैं तब आपको वैल्यूएशन रूल्स जाना है. सेकेंड, अगर यू आर पेइंग दी फॉर द कंसिडरेशन इज नॉट होली और फुल्ली पेड इन मॉनेटरी टर्म्स. एंड थर्ड इज टीवी डिक्लेयर इज नॉट रिलायबल. And there is also fourth condition, like there are certain specific transaction where the government has said that you have to follow the valuation rules, and then you cannot follow the section 15 of the CGST Act, right? So ये 4 condition basically है जहाँ पे आपको valuation rules को रेफर करके ही GST देना है, right? So the important point, the last row, इन दिस केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम्स लॉ विल बी एप्लीकेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एज पर द IGST एक्ट. मतलब सेक्शन 15 विल अप्लाई ओनली इन केस ऑफ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बट विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के लिए आपका वह कस्टम्स लॉ ही अप्लाई करेगा विच हैज़ बीन क्लियरली प्रोवाइडेड अंडर द IGST लॉ. Similarly, for import of services, section 15 read with chapter 4 of IGST Act will apply. Okay, so very important to note कि ये जो है सारा प्रोवाइडेड किया गया है ये डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए स्पेसिफिकली है. फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स यू हैव टू गो टू कस्टम्स लॉ. द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू विल बी coming from the customs law. Similarly, for import of services you will have to go to chapter 4 of IGST Act and reading with this section 15 of the CGST Act. Right. I hope you will find this video very useful and very easy to understand. In case of any query, kindly get in touch with me. My mail ID is there in the comment box, so please connect. Please like the video and subscribe my channel if you like this video. Thank you friends.